নমস্কার, আমার নাম শিল্পা দাশগুপ্ত। চলে এসেছি আবার সেতুর জন্মদিন উপলক্ষে একটি স্পেশাল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে। প্রথম পর্ব যদি আপনারা মিস করে থাকেন তাহলে বলবো স্ক্রোল করে একটু পিছিয়ে যান, আর পারলে দেখে আসুন এই ভীষণ সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগ। আজকের পর্বে আছে আরো অনেক কিছু। এই যেমন প্রথমেই কলকাতা থেকে আমাদের সাথে আছে রিক দীপ। ছেলেটি মাল্টি ট্যালেন্টেড। গান, থিয়েটার, ভেন্ট্রিলোকুইজমের পাশাপাশি আঁকা ছিল ঋগদীপের সঙ্গী ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু কোভিডের সময় ঋগদীপ এই আঁকাকেই নিয়ে যায় এক অন্য মাত্রায়। নতুন কিছু ট্রাই করার ইচ্ছে তাকে ইন্সপায়ার করে একটা নতুন ফর্ম অফ আর্টকে এক্সপ্লোর করতে, যার নাম লিফ আর্ট পোর্ট্রেট। সেটা কি জেনে নেব ঋগদীপের থেকেই। নমস্কার, আমি ঋগদীপ পাল, একজন লিফ পোর্ট্রেট আর্টিস্ট। চলুন আপনার সাথে আজ গল্প করতে করতে আমার কিছু কাজ আপনাকে দেখাই। দেখুন, লিফ পোর্ট্রেট আর্টিস্ট মানে বুঝতেই পাচ্ছেন, পত্রশিল্পী, মানে পাতার ওপর আমি কাজ করি। যেমন আপনি দেখছেন এখন ভিডিওতে আমি একটা খেজুর গাছের পাতা নিয়েছি এবং তার ওপর আমি একটি পোর্ট্রেট কাটিং করতে চলেছি বা কাটিং করছি আর কি। তো এই পোর্ট্রেটটা কার করছি সেটা না হয় সবটা হয়ে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তার আগে আমি বলি যে কী করে আমি এটা করি বা কী করে আমার এই শিল্পটাকে আমি জন্ম দিলাম আর কি। তো 2020 সালে আমি লকডাউন শুরু হয়েছে, তো সেই সময় বসে রয়েছি বাড়িতে। যেহেতু আমি আগে থিয়েটার করতাম, তো থিয়েটারটা পুরোপুরি আমার বন্ধ হয়ে যায় লকডাউনের টাইমটায়। তো তারপর আমি ফেসবুক বা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি দেখতাম যে এক একটা লোক এক এক রকমের শিল্পকলা তুলে ধরছে। তো আমারও ইচ্ছে হতো আমি কিছু করি। তো সেই দেখা দেখি আমি আঁকা এঁকে আর কি পোস্ট করতাম বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানিয়ে হাতের কাজ বানিয়ে পোস্ট করতাম। কিন্তু সেগুলো লোকে ভালো অবশ্যই বলতো, খারাপও বলতো, পুরোপুরি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেতাম আর কি। তো সেই কারণে ওইগুলো ছেড়ে এবার একদিন হঠাৎ আমি বাড়ির ছাদে পায়চারি করছি, এমনি নর্মাল একটা সন্ধ্যাবেলায় পায়চারি করছি। আর যেহেতু আমার বাড়িটা উত্তর কলকাতায়, তো বুঝতেই পারছেন এখানকার উত্তর কলকাতার পুরোনো দিনের বাড়ি, বনেদি বাড়িগুলোতে বিভিন্ন ধরনের গাছ বেরোয়, মানে বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, নয়নতারা গাছ, বিভিন্ন ধরনের গাছ বেরোয়। তো সেরকমই একদিন আমি ছাদে পায়চারি করছি, তো হঠাৎ আমি দেখি যেরকম একটা অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। তো তারপর ভাবি যে এই পাতার উপর তো কিছু একটা করা যেতে পারে, হঠাৎ মনে হলো আর কি। তো মনে হওয়া বলতে বলতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করলাম। দেখুন, আপনাদের সাথে আলোচনা করতে করতে আমি একটা সুন্দর পোর্ট্রেট বানালাম। এবার আপনারাই বলুন এটা কার পোর্ট্রেট বা কার প্রতিচ্ছবি আমি তুলে ধরেছি। এটা পুরোটাই খেজুর পাতার ওপর আমি করেছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোর্ট্রেট। ঠিকই ধরেছেন। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওতে তো সময় বোঝা যায় না বা এডিট করে আমরা একটু ছোট করি, বাট এটা করতে আমার সময় লেগেছিল 5 ঘন্টা। মানে আঁকা, কাটিং সমস্ত কিছু করে এটা আমার পুরোপুরি 5 ঘন্টা সময় লেগেছিল। এখন ওই পাতাটা আমার কাছে সংরক্ষণ করা রয়েছে। তো এরকমই বিভিন্ন পাতার ওপর আমি কাজ করি। তো আরও একটা পাতার ওপর কাজ আমি দেখাবো আপনাকে। তো চলুন সেটা দেখানো যাক। এবার যেটা বলছিলাম যে যেহেতু উত্তর কলকাতায় বাড়ি আমার, তো সেরকমই একটা অশ্বত্থ পাতা আমি তুলে এনে আমার প্রথম মনে আছে আমি যে
পোর্ট্রেটটা আমি করেছিলাম সেটা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পোর্ট্রেট, এবং করে যথারীতি আমি ফেসবুকে পোস্ট করি। অসাধারণ প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম সবার কাছ থেকে। তো করতে 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 এখনও আমি সেই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের আশীর্বাদে। দেখতে দেখতে এবার আমি একটা বটপাতা নিয়ে নিলাম, আর সামনেই দুর্গাপুজো আসছে। তো দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে রোজগার করে, আমিও রোজগার করি এইভাবে। অবশ্যই পাতা থেকে আমার লিভ পোর্ট্রেট করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার এক্সট্রা ইনকাম হয় ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপুজোয় আলাদাই একটা ভালো লাগার কাজ থাকে। সবার আবদারে বা বিভিন্ন ক্লাবগুলোর আবদারে আর কি করতেই হয়। তো যাই হোক, আপনাদের বা আপনাকে এখন দুর্গা ঠাকুরের একটা প্রতিচ্ছবি করে দেখাচ্ছি। এখানে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি দুর্গা মাকে উপরে বসিয়েছি এবং তার সন্তানরা নিচে রয়েছে, মানে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী। আর একদম নিচে মহিষাসুরকে বসিয়েছি। এই করে পুরো এই দুর্গা ঠাকুরের প্রতিচ্ছবিটা আমি তুলে ধরলাম পাতার মধ্যে দিয়ে। দুর্গাপুজো আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, সেটাই আমি পাতায় তুলে ধরলাম। বলবেন কেমন হয়েছে। এছাড়াও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যারিকেচার ফটো সত্যজিৎ রায়ের, এবং এটা হচ্ছে গোপাল মাখন চুরির সময় সেই সময়কার একটা পোর্ট্রেট। এটা হচ্ছে গণেশ ঠাকুর, এটা অশ্বত্থ পাতার ওপর করেছিলাম। এটা অশ্বত্থ পাতার ওপর বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি করা। এছাড়াও আরেকটা দুর্গা ঠাকুর করেছিলাম, দুর্গা ঠাকুরের পুরো ফ্যামিলি, এটা পুরোটাই বটপাতার উপর করেছিলাম। তো আপনাদের আশীর্বাদে এই প্রতিচ্ছবিগুলো বা এই লিভ পোর্ট্রেটগুলো বিভিন্ন জনকে দিয়েছি, যেমন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট গায়ক সুরজিৎ চ্যাটার্জি, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার মহাশয়, এবং অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি সহ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে দিয়েছি। কলকাতা থেকে এবার সোজা চলে যাব অস্ট্রেলিয়া। দেশ যাই হোক না কেন, বাঙালির বাঙালিয়ানা আর বাংলার প্রতি টান আমাদের সকলকে বেঁধে রেখেছে এক টানে। কলকাতার ঋগদ্বীপ হোক বা অস্ট্রেলিয়াতে থাকা মানালি রয় দত্ত এবং তিয়াশা চ্যাটার্জি, এই সেন্টিমেন্টটা কিন্তু একদম এক। মানালি আর তিয়াশা ভীষণ ট্যালেন্টেড ডান্সার্স, ডান্স নিয়ে অসম্ভব প্যাশনেট। তাই কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ হয় ওরা দুজনে নৃত্যের তালে মেতে ওঠে। তারই একটা ছোট্ট ঝলক থাকছে আজকের অনুষ্ঠানে। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবির গায়, তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায় রে, মেঠো সুরের ছায়। রং বেরঙের বেলোয়ারি সাত রঙা রং মুখ, তোর মুখেতেই লুকিয়ে আছে জীবন ভরের সুখ রে, জীবন ভরের সুখ। যখন শিমুল পলাশ ঝরবে পথে, দুলবে হাওয়া বুকে, থাকবো দুজন দুজনাতে শপথ নিয়ে সুখে। শিমুল পলাশ ঝরবে পথে, দুলবে হাওয়া বুকে, থাকবো দুজন দুজনাতে শপথ নিয়ে সুখে। গাইব তোরি দৃষ্টি পানে এক সুরেরই গান, টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবির গায়, তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায় রে, মেঠো সুরের ছায়।
করে এমন হলো যা হতো না আগে? ছলাৎ ছলাৎ বুকের মাঝে কোন এক নদী জাগে। কেমন করে এমন হলো যা হতো না আগে? ছলাৎ ছলাৎ বুকের মাঝে কোন এক নদী জাগে। বলি ও সজনে, বলি ও সজনী, তোর হাতে যে আমার জীবনটাই। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবির গায়। তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায়, হে মেঠো সুরের ছায়। अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके फंस जरा रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे। अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके फंस जरा झड़ी बरखा की लड़ी बूंदों की लड़ी बूंदों की टूट के ऊपर से रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे। पहले प्यार की पहली बरखा कैसी आस जगाए, बारिशें पीने दो मुझको मन हरा हो जाए। प्यासी धरती प्यासे अरमां प्यासा है आसमां, भीगने दो हर गली को भीगने दो जहां। अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके फंस जरा। এত সুন্দর নাচের পর মনটা একটু আড্ডা আড্ডা করছে। আর যদি সাথে থাকে প্রিয়ানি বাণী পণ্ডিতের মতন একজন অসম্ভব গুণী শিল্পী, তাহলে দারুণ আড্ডার সাথে ভালো গানও শুনতে পাওয়া যায়। প্রিয়ানির সাথে আড্ডার প্রথম পর্ব ছিল এপিসোড 1-এ, আজ দ্বিতীয় পর্ব। আমরা নানান ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রিয়ানি ভীষণ সুন্দর সুন্দর গানের ব্যাপারেও কথা বলেছে এবং অবশ্যই গেয়েওছে। তাই আমি ভীষণভাবে রিকোয়েস্ট করব এপিসোড 1 নিশ্চয়ই দেখুন। এবার আর দেরি নয়, প্রিয়ানির সাথে আমার আড্ডার দ্বিতীয় পর্ব রইল আপনাদের জন্য। Welcome back to another episode of our really lovely candid gupshup, प्रियानी and me शिल्पा। हम लोग बातें कर रहे थे। एपिसोड 1 शायद आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो दिस इज हाई टाइम यू मस्ट कैच अप before you join us on episode 2. Correct. Otherwise, they won't be able to relate with this. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। जिन्होंने पहले नहीं देखी है उनके लिए बता दें, आई एम इन चैट विद प्रियानी वानी पंडित। शी इज अ ब्यूटिफुल सिंगर। You have heard her million times probably by now. You have heard her on multiple reality shows, on many Bollywood movies, and of course her independent projects. She is a trained, acclaimed singer. Or I just want to add one thing. Absolutely. 2 days back, my new song got released from the movie Ghud Chadi with Sukhbir Punjabi Munde. So the beginning part and the female part I've sung in that song Punjabi Wow. Munde. Please listen Punjabi Munde from the movie Ghud Chadi. Absolutely. And since you mentioned Priyani, इस एपिसोड के एंड में can we hear a little bit of this song? Sure. Okay, Yes, okay. yes. Chalo. Definitely. Okay, let's get into the gupshup and adda, as we Bengalis call it, because we love talking. ठीक है? Everybody, all the women love talking. Me too. Okay, चलो अड्डा हो जाए, उसके बाद हम लोग रैप करेंगे on a sweet note, on a musical note. You know what? कल ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि gossip is good for mental health. अच्छा, Because, तो yeah. So it's nice.
आज वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। Yes. अच्छा प्रियानी, Yes. इन द फर्स्ट एपिसोड वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट योर ग्रोइंग अप, आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में थोड़ा हमने बात की। तो आपका सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्पिरेशन कौन रहा है? ओह, ओके। बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं एक्चुअली मेरे तो, बट मैं अपने पापा को सबसे पहले रखती हूँ। माय फादर, ही यूज्ड टू सिंग लाइक अ ड्रीम। बहुत अच्छा गाते थे वो। एंड अगर मैं मतलब ही वॉज नॉट क्लासिकली ट्रेंड। क्लासिकल उन्होंने सीखा नहीं था, बिकॉज गांव में जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे म्यूज़िक जैसा कुछ चीज़ नहीं है। वहाँ पे दे ऑल आर लाइक बिजनेस मैन्स। तो पापा को जब ये पता चला कि उनको गाना है और वो है, तो मेरे दादाजी ने ऑफकोर्स एंटरटेन नहीं किया। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो अपने कमरे को बंद कर लेते थे हाँ, और अपना अपना रेडियो या अपना टेप रिकॉर्डर चलाते थे, और वो 3 से 4 घंटे सिर्फ गाते थे गाने। 3 से 4 घंटे। भी यूज टू बी लाइक कि पापा अच्छा आज तो 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, पापा गाते ही रहते थे। तो वो जो हम रियाज बोलते हैं, वो उस तरह से वो रियाज करते थे। वो अपनी भड़ास निकालते थे कि मुझे गाना गाना है, आई सीन दैट। वो अंदर की एक वो जो कशिश रहती है ना कि मुझे गाना गाना है, वो मैंने पापा के अंदर देखी थी। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पापा के पास, कुछ नहीं, लेकिन गाने से इतना प्यार है कि कमरा बंद करके अपना गाना गा रहे हैं। तो वो आई थिंक जी, आज म्यूज़िक के लिए अपना एक होता है ना प्यार है, कि हाँ, मुझे वो असली प्यार है, जिसमें कोई कोई बोलते हैं ना कि एक अनकंडीशनल लव, हाँ, उससे कोई कुछ चाहिए मिलावट नहीं। नहीं है। कोई हाँ, मिलावट नहीं चाहिए, नहीं कुछ म्यूज़िक से, मुझे हाँ, सिर्फ गाना गाना है। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था, और अभी भी करता है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स हम तो लता जी, आशा जी, ऑफ कोर्स मदन मोहन जी, ये हाँ, तो है ही हमारे, हाँ, हाँ, सबके ही आइडल होते हैं। लेकिन आई थिंक जो हमारे हमारे हम ना अपने माँ बाप को बहुत कैजुअल लेते हैं, है ना? हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, कि हम जो छोटी छोटी बातें उनसे सीखनी चाहिए, वो हम बाहर कहीं पैसे दे के सीख रहे होते हैं। हम्म, वेरी ट्रू। हाँ, तो हम अगर उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेना, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे ऐसा एब्सोल्युटली, लगता हमको है। दिखाई नहीं पड़ता है, इतना पास में रहते हैं करेक्ट, ना। करेक्ट, सब इजी अवेलेबल है। तो बाद में लगता है हाँ, जब चले जाते हैं, या जब हम दूर हो जाते हैं या शादी हो जाती है, तब लगता है कि हाँ यार, ये तो अब हमको जो बोलते हाँ, थे, ये सो तो ट्रू। छोटी सी चीज़ हम पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए। सो वैसा। तो ही वॉज माई इंस्पिरेशन। वाओ। अच्छा, मैंने कहीं पे सुना था, मे बी वीडियो ऑफ वन ऑफ योर शोज, कि आपको रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो गाने बहुत पसंद है। ये सही है क्या? हाँ, मतलब किसे पसंद नहीं है? हर अच्छा सिंगर जो है ऑफ ना, कोर्स। उसको रेट्रो गाने ही पसंद होंगे। हम्म। क्योंकि वो मेलोडी, वो लिरिक्स और वो ट्यून्स, वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, आप उनको अपने जहन से निकाल नहीं सकते हो। और वैसा कुछ तोड़ बन नहीं रहा है आज ना, तो हाँ, मज़ा भी नहीं आता है उतना, जितना मज़ा वो गानों को गाने में आता है। तो यस, आई एम रेट्रो फैन। ओके। अभी रेट्रो म्यूजिक की बातें हो रही है, हालांकि मैंने पहले कहा था कि लेट्स कीप द म्यूजिक फॉर द एंड ऑफ द एपिसोड, पर मुझे ना लालची हो रही हूँ मैं। रेट्रो म्यूजिक अच्छा। के बारे में बातें हो रही है और कुछ गाना ना हो, इट फील्स हाँ, इनकम्प्लीट। तो कुछ सुनाएंगे? चलिए, सिंस योर ऑडियंस इज मोर ऑफ बंगाली, तो ऐसा गाना गाती हूँ जो बंगाली में भी और हिंदी में भी है, और श्योर, रेट्रो भी है। ठीक है, सो एब्सोल्युटली। आई कैटर एवरीवन। एक्सक्यूज माय बंगाली, आई एम नॉट दैट ग्रेट, बट मैं गा लेती हूँ। আমি যে তোমারি শুধু জীবনে মরণে, আমি যে তোমারি শুধু জীবনে মরণে, ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে, ও সজনা। রজনী এখনো বাকি, আরো কিছুতে বাকি, বলে রাত জাগা পাখি, ও সজনা। থ্যাংক ইউ। So pretty and so beautiful. आई होप मैंने ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं की। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है।
it more than the pronunciation, I think it's the feel what matters for any या music. एक्चुअली आई सिंग, अभी बहुत टाइम से गाया नहीं बंगाली, पर आई सिंग बंगाली व्हेन आई गो फॉर दुर्गा पूजा। आई हाँ. सिंग कपल ऑफ सॉन्ग्स देयर, बट हाँ उस समय मैं काफ़ी तैयार होती हूँ, उस समय सारे प्रोनाउंसिएशन काफ़ी देख के गाती हूँ। अभी रैंडम आपने बोला तो मैंने कुछ गा दिया। अच्छा, एक बातें मतलब सुन रही थी, और मुझे आपके पहले वाले कॉन्वर्सेशन से भी लग रहा था कि जो जिसका फैन है ना आपके, उसके बाद अगर किसी तरह से उससे मिलने का मौका मिल जाए तो यू गेट ओवरवेल्म्ड। ऐसा या कभी कुछ आपके साथ हुआ है, व्हेन यू हैव एक्चुअली प्रोफेशनली स्टार्टेड सिंगिंग और गॉन टू रियलिटी शोज एंड मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज? या फर्स्ट टाइम हुआ था व्हेन आई सॉ सोनू निगम। हाँ. सोनू निगम सर आए थे वॉइस ऑफ इंडिया में, एंड उसके पहले हम प्रिपरेशन के लिए उनके घर गए थे व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट। सो दैट वाज द मोमेंट, लाइक यू नो, आई वाज ऑ स्ट्रक। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कुछ पूछते जा रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कुछ भी बोल रही थी। तो वो एक मोमेंट था। एंड सेकेंड मोमेंट वॉज वॉइस ऑफ इंडिया का फिनाले था एंड लता दीदी आई थी। तो अच्छा. सेम चीज़ हुआ जब लता दीदी, मैं ही चरणों में ही बैठ गई थी, मुझे कुछ हाँ. बोलना नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर। एक वो मोमेंट था, अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल। एंड थर्ड मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ जबकि मैं बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फ़ैन हूँ या मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं एक शो देखने गई थी जहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया जी बजा रहे थे बांसुरी, एंड आई डोंट नो, कुछ ऑरा है उनमें, एक डिविनिटी है। मैं उनको देख के भी मुझे सेम फीलिंग आया, जबकि मैं, ऐसा नहीं था कि एक लता जी वगैरह का तो दिमाग में है कि उनके गाने गाते हैं, है ही. पर हाँ. हरि प्रसाद जी को देख के वो, आई थिंक वो डिविनिटी से मैं स्ट्रक हो गई थी एकदम। तो ऐसे दो तीन मोमेंट मेरी लाइफ में है जब मैं एक्चुअली फ़ैन मोमेंट जिसको बोलते हैं वो हुआ था मुझे फील। और इनमें से किसी के भी साथ कुछ काम करने का कभी मौका मिला, या इन फ्यूचर कुछ प्लान्स है? सोनू सर के साथ तो आई थिंक मैंने एक शो किया था, पर हाँ शान दादा के साथ, जो शान दादा भी, मतलब आई वॉज फ़ैन, बिग फ़ैन, और जब वो हमारा होस्ट करते थे तब तो सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, बट देन आई सैंग 2-3 नेपाली सॉन्ग्स विथ हिम, मतलब हमारे वाह. डुएट थे। और हाँ. फिर शान दादा के साथ मैंने बहुत शोज़ भी किए। उदित सर के साथ मैंने काफ़ी डुएट किए हैं नेपाली में और मराठी में, लाइक रीजनल सॉन्ग्स मैंने काफ़ी किए हैं। हाँ. हाँ. तो या ये है। बाकी आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह के साथ तो खैर, जैसे जतिन ललित जी, आई स्टार्टेड माय करियर विद जतिन ललित एक्चुअली। रियलिटी शो से पहले जतिन ललित ने मुझे रोक सको तो रोक लो, इनकी एक मूवी थी, हाँ. उसका बैकग्राउंड मुझसे गवाया था। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, ओके. एंड माई फादर टुक मी देयर टू मीट जतिन ललित जी, एंड देन दैट टाइम आई फर्स्ट टाइम आई वेंट इन टू द स्टूडियो एंड आई सैंग द बैकग्राउंड ऑफ रोक सको वाह. तो रोक लो। सो या वो एक था कि जो जिन लोगों को हम देखते हैं और उनके साथ जब काम करने को मिलता है, एग्जैक्टली. एंड ही हाँ. गिव मी द चेक दिया था उन्होंने, और वो चेक अभी तक मेरे संभाल के रखा हुआ है। अरे वाह. मैंने डिपॉजिट भी नहीं किया कि नहीं, ये एक फ़ैन मोमेंट है कि उनके साथ काम किया। दैट्स सो सो या स्वीट. तो एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, आई वोंट से जस्ट सिंगर, क्योंकि आप सिर्फ सिंगर नहीं हैं अभी, आप म्यूजिक सिखाती भी है, आप कंपोजर भी है. तो एज अ म्यूजिशियन ओवरऑल, इज देयर अ ड्रीम, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव एट सम पॉइंट? या टू बी वेरी फ्रैंक, आज वो एक्चुअली मैं आई ऑलरेडी स्टार्टेड टूवर्ड्स इट। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रागीत, जहाँ पे मैं रागों पे बेस्ड गाने, मेरा एक शो है, 2 घंटे का शो होता है, उसमें मैं रागों पे बेस्ड गाने गाती हूँ विद सम रागाज इन्फॉर्मेशन। ओके. लाइक अगर मैंने स्टार्ट किया राग खमाज से, तो पहले मैं राग खमाज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी कि क्या है खमाज, खमाज से कौन सा रोग ठीक हो जाता है, खमाज में क्या मूड है, क्या इंटरेस्टिंग बात है, और फिर उस पर बेस्ड गाने गाती हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन 2 shows ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, एंड पीपल वर लाइक, हमें पता ही नहीं था कि राग म्यूज़िक इतना ब्यूटीफुल भी हो सकता है। हम तो रोज़ गाने सुनते हैं, हमें पता ही नहीं ये उस राग पे है। और राग सिर्फ हमारा म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। हमारा म्यूज़िक जो है ना, एक थेरेपी है, हाँ, हमें हील एब्सोल्युटली. करता है। और
हमें पता भी नहीं है उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट, उसके डिवोशनल बेनिफिट, उसके थ्योरेटिकल इफेक्ट्स। अब हर राग का एक थ्योरेटिकल इफेक्ट है। आजकल हम मेंटल इलनेस उससे ठीक करते हैं, म्यूज़िक थेरेपी के बारे में हमने सुना होगा। और बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअली भी, हम क्यों बोलते हैं कि गाने से हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं, उसके रीजंस है, देयर आर साइंटिफिक रीजंस। हमारी बॉडी में 7 सुर कहाँ है, क्या है, आई एम रिसर्चिंग ऑन देम, एंड उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा शो खड़ा किया है। एंड इट वॉज सो वंडरफुल टू सी द रिएक्शन कि मेरे ऑडियंस में क्लासिकल सुनने वाले लोग भी थे और आम जनता भी थी। सो दैट वाज माय ड्रीम कि मेरे एक ऐसा शो हो जहाँ पे ये जो क्लास और मास के बीच में जो एक दीवार है ना, वो ख़त्म हो जाए, खत्म हो जाए। और हाँ, मास भी समझ पाए क्लासिकल म्यूज़िक क्या है और क्लास भी समझ पाए कि मास का म्यूज़िक क्या है, और वो दोनों मर्ज हो जाए, क्योंकि वो अलग नहीं है। एब्सोल्युटली। सो वो मुझे हमेशा से एक ड्रीम था, और ऑलरेडी आई स्टार्टेड द जर्नी, 2 shows completed, and now I want to go international with this concept कि इंडियन म्यूज़िक के बारे में अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। इंडियंस को ही नहीं पता है तो हम दूसरों को क्या ही बताएंगे। तो वो एब्सोल्युटली। कॉन्सेप्ट के साथ जब, और बहुत खूबसूरत शो होता है, सारे पॉपुलर गाने लाइक राग खमाज पे हाँ बेस्ड, हाँ। तेरे मेरे मिलन किए रहना, या पिया तुझसे नैना लगे रे, या वैष्णव जन, ये सब कितने कॉमन गाने हैं। बट एग्जैक्टली। हाँ, पर ये राग खमाज पे है, तो क्या है राग खमाज, चलो थोड़ा सा जानते हैं। तो हाँ। ये अवेयरनेस बढ़ा रहा है इंडियन म्यूज़िक के लिए। कितने लोग मेरे पास आफ्टर शो आए और बोले कि हमें पता ही नहीं था कि म्यूज़िक में, गानों में राग होती है। सीरियसली, पीपल आर सो रियली। सो इनोसेंट कि उन्हें ये भी नहीं पता था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब वी रियली वांट टू लर्न कि ये क्या है। मेरी वही जीत हो गई, वही मेरा मोटिव था कि वो लोग सीखें। ज़रूरी नहीं हर बंदा सिंगर बन जाए, एब्सोल्युटली। क्या हाँ। हर बंदा मैथमेटिशियन बनता है क्या? पर मैथ्स नहीं, का बेसिक सिखाते हैं और ना कोई उसको, जरूरत भी नहीं है उसके कोई लिए। ज़रूरत भी नहीं। हम्म। हम बेसिक, मेरा मोटिव ये है कि म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे Correct। स्कूल में, आपने ताकि बहुत सही अवेयरनेस कहा। हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे यूएस में म्यूजिक इज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम बहुत करेक्ट, एक्टिवली। पर इंडिया में नहीं है। एग्जैक्टली, आई गेट सरप्राइज क्योंकि इंडिया में हम इतने स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल हेरिटेज लेकर बड़े होते हैं, हमको सिखाया जाता है, बट प्राइवेट लेसन्स होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर वो सकते आप हैं, बंगाली हो इंटरेस्टेड इसलिए, है। आप एग्जैक्टली, बंगाली हो हाँ। इसलिए आप सीखते हो, लेकिन हर कोई नहीं सीखता तब है। सब नहीं सीखता है। हाँ। हाँ, और फिर जब मैं बताऊँ, जब हम शिकायत करते हैं यार क्लासिकल म्यूज़िक के शो में ऑडियंस नहीं आती, कैसे आएगी? उन्हें पता ही नहीं है कि पता वो ही है नहीं है। क्या। एब्सोल्युटली। आपको वही, मुझे लगता है कि जैसे मैथ्स में हम नंबर सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, साइंस में हम बेसिक सीखते हैं, म्यूज़िक का भी बेसिक सबको सिखाओ। 100%। ये सबको आना चाहिए इंडियन म्यूज़िक क्या है, और उसके फिर बाद में एब्सोल्युटली। इफ़ेक्ट्स कितने हैं। हाँ। आप आप मेंटल इलनेस की बात करते हो, आपको नींद नहीं आ रही है, ये आपके लिए एक बीमारी है, इंसोम्निया है। आपको पता है कि अगर आप राग खमाज या राग रमन सुनो, और कैसे नींद नहीं आई आपको, आपको नींद आएगी, आपको कुछ भी नहीं, आपको कोई मेंटल, सारा डिप्रेशन चला जाएगा। हर राग के एक इफ़ेक्ट है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सिंगर बनना ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं, करने की नॉट ज़रूरत नहीं, नेसेसरी। लेकिन ये जो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, ये मेरा मतलब, मेरा उद्देश्य ये है लाइफ का कि म्यूज़िक को मुझे सब्जेक्ट बनाना है स्कूल में। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थॉट, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एकदम छोटे बच्चों से लेके बड़ा तक इन स्कूल आपका करिकुलम्स होता है, जैसे यू कि वोंट बिलीव, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स में वेस्टर्न म्यूज़िक सिखा रहे। वाई? यू आर इन इंडिया, आप इंडियन म्यूज़िक क्यों नहीं उसमें डाल रहे हो? आप इंग्लिश गाना सिखा रहे हो। आई एम नॉट अगेंस्ट, आई हैव लर्न इंग्लिश, बट क्या इंडियन म्यूज़िक को आपने इतना वो कर रखा है कि इंटरनेशनल स्कूल में भी, या इवन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे ही नहीं होता। हाँ। इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी गानों के नाम पे सिर्फ एक जन गण मन आता है बच्चों को। तो वही मुझे लगता है कि आप जब म्यूज़िक आपने एक सब्जेक्ट रखा है और उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक सिखा रहे हो, आप डोरे मी फासो लाती सिखा रहे हो, व्हाई कांट यू टीच सारेगामा पा सा? एब्सोल्युटली। सो प्रॉब्लम क्या वही मेरा फाइट है कि फिर आप बोलते हो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आपने जड़ी तो उसकी वहाँ पे डाल रखी है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो होगा ही सही, है? जड़ी तो वेरी बच्चे ट्रू। सीख ही वो रहे हैं। मेरी बेटी सिर्फ इंग्लिश गाना गाती है, आई फील सो बैड कि क्यों, वो उसको तो माहौल है, चलो मैं सिखा रही हूँ, हाँ मैं हाँ, सब कर रही हूँ, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, ठीक पर है। सबके घर पे नहीं होता सबको है। टेलर सिर्फ पता है। हाँ। टेलर सिर्फ सबको पता है, जस्टिन बीबर सबको पता है, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा है कि लता जी, आशा जी किसी को पता है। अच्छा ये कौन सा गाना है, अच्छा ऐसा हो गया है, अच्छा हाँ। ये क्या होता है।
अच्छा ऐसा ये वर्ड का क्या हिंदी समझ में नहीं आ रहा, सो दैट्स अ पिटी, मतलब बहुत मुझे बुरा लगता है कि ये होना ही चाहिए। नो वेरी ट्रू। ये बंगाली लैंग्वेज के साथ हम सब हमेशा बोलते हैं कि बंगाली लैंग्वेज, कलकत्ता में आप जाओ तो मोस्ट पीपल दे फील अशेम्ड बंगाली बोलने में, उनको शर्मिंदगी होती है, वो बच्चों को नहीं सिखाते। पर हम जो एक्चुअली में प्यार करते हैं लैंग्वेज को, इतना सराहते हैं, उनको लगता है कि दिस इज नॉट डन। पर आप बांग्लादेश में जाओ और जैसे वहां पे बंगाली लैंग्वेज का कल्चर होता है, इट्स फिनोमिनल। या तो बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, नो? यू शुड करेक्ट, अप्रिशिएट द करेक्ट, लैंग्वेजेस, द करेक्ट, म्यूजिक। द ट्रेडिशन, द हेरिटेज वी शुड सेलिब्रेट, अदरवाइज हमारे बच्चे तो भूल ही वो जाएंगे सब खत्म कुछ, हो जाएगा एट खत्म सम हो पॉइंट, जाएगा। इट विल बी सो ऑल दैट्स, गॉन। ये रागी जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दैट अवेयरनेस, कि आप अवेयर हो दैट्स कितना कितना फिनोमिनल। खूबसूरत है हमारा म्यूजिक और एब्सोल्युटली। कितने बेनिफिट्स है उसके। तो आपने कभी सोचा है कि राग गीत को सिर्फ शोज के फॉर्मेट से बाहर जाके इन सम अदर फॉर्मेट में भी, सम ऑनलाइन फॉर्मेट की, यूट्यूब का कोई चैनल बनाए या पॉडकास्ट बनाए, ऐसा कुछ असी सोचे? फ्यूचर में शायद मैं वो करूं, मैंने अभी तक उस बारे अच्छा। में सोचा नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि लोग लाइव शोज में आए। हाँ, See, we are too एब्सोल्युटली much एब्सोल्युटली। into online things, and I हाँ। really appreciate. I do online classes, and because of that, I have student all over the world, US, UK, सब में student है online चीज़ों की वजह से। लेकिन क्या है कि unless and until it's a private thing or we are getting paid, it's honorable. अगर मैं इसको थोड़ा अभी, ऑल्दो मैं यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस डालती हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा ही कॉन्सेप्ट अगर यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, तो वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, हाँ। एंड कोई लोग कदर नहीं करेंगे उसकी। मैं चाहती हूँ लोग लाइव इवेंट में आए, लोग वो एनर्जी फील करें, क्योंकि वो लाइव इवेंट की एनर्जी अलग होती है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वो नथिंग अलग कैन ही। बी। हाँ, और फिर लाइव इवेंट का कल्चर इस बहाने, क्योंकि अब लाइव इवेंट के नाम पे सिर्फ डीजे हो रहा है, हम्म। विच इज़ रॉन्ग, राइट? एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे कॉन्सर्ट करें तो उसका एक अपना मज़ा है, उसका एक अपना चार्म है, वो है। इसी वजह से मैंने अपना करिकुलम ऑनलाइन भी नहीं डाला है, कहीं भी उसको यूट्यूब पे ऐसा नहीं डाला है कि मैं सब कुछ जो भी मैंने अपने डिज़ाइन किए हैं वो मैं प्राइवेट लेसन्स में ही देती हूँ, क्योंकि आई वांट जो सामने वाला बंदा है उसकी कदर करे, उसको पता चले कि मैंने कितनी मेहनत से उसको, कितने सारे एक्सपीरियंस से उसको बनाया है और उसका वैल्यू क्या है। सो इसीलिए इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसमें हूँ कि यूट्यूब पे सिर्फ गाने वाने डालती हूँ, थोड़ा सा शो का वीडियो डाल दिया और डाल दिया, बट हो सकता है फ्यूचर में मैं वो भी करूँ। अगर ये अभी तो फ़िलहाल शुरुआत है, अभी 2 शोज़ हुए हैं रागीत के, मे बी आफ्टर 10-15 शोज़ आई विल स्टार्ट पुटिंग दैट स्टफ। No, the only reason I asked is हमारे जैसे लोग जो शायद जा नहीं पा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी की वजह से, कि या कोई भी और वजह हो, बड़ा इंटरेस्ट रखते हो, बिकॉज आपने जब बोला तो आई वाज इन ऑ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं, म्यूजिकल फैमिली से आए या हुए या हैं, तो थोड़ा सा जानकारी फिर भी है, compared to maybe 20 other people. करेक्ट। पर अगर किसी को एकदम जीरो नॉलेज है और उनको उनको शायद पता ही नहीं कि आप ये शो कर रहे हो, पर इफ इट्स अवेलेबल इवन इन अ पेड फॉर्मेट ऑनलाइन, तो शायद उनको भी एक्सेसिबल या होगा इन फ्यूचर। Yeah, I think maybe in future I can think about that. But right now, I really want to go places to places and do this show. या या So या that's why we shot the videos, and now promotion के लिए हम एक छोटा सा marketing promotion के लिए वो बनाएंगे एक promotional video, and that we will circulate all over the world जहाँ भी हमें लगता है हमारे, मतलब हमें बुला सकते हैं, लाइक यूएस में बहुत अच्छा मार्केट है इसका। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो वही हमारा प्लान है कि फ़िलहाल हम जितने ज़्यादा लाइव शोज़ कर सके उतने करेंगे, बिकॉज उसका एक और रीज़न है, आई रियली वांट लाइव म्यूजिशियंस के साथ मैं परफॉर्म कर। ऑनलाइन वो उतना मज़ा नहीं वो आएगा नहीं लाइव होता, म्यूजिशियंस के ना, साथ, वो नहीं होता। ना, मैं not शायद at all. बात करती रह जाऊंगी, लेकिन जब 5-6 म्यूजिशियन एक साथ में बैठते हैं और हम जब गाते बजाते हैं, अलग ही एक माहौल होता है, और उनको भी रोज़गार चाहिए। Of course, that's very, very सब, important. तो वो कहाँ जाएंगे फिर? हम सब कुछ ट्रैक Exactly. पे कर लेंगे, सब कुछ होगा, तो उन लोगों का क्या?
हाँ, और वो फील अलग है, वो एक्रोस्टिक का फील ही अलग नो होता नो है नो, जो दैट्स लाइव का टोटली है। डिफरेंट, हाँ या टोटली। सो दैट्स व्हाई वी वांट कि जब तक हम लाइव इसको कर पाएं और प्लेसेस टू प्लेसेस गो सम एवरीवेयर विद म्यूजिशियन एंड डू थोड़ा सा ट्रेडिशनल फॉर्म में करते हैं। और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो फ्यूचर में आई कैन थिंक ऑफ द ऑप्शंस यू टोल्ड मी। ग्रेट। अच्छा, राग गीत के बारे में बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप राग खमाज के बारे में भी बताएं। थोड़ा सा फील दे दीजिए हम लोगों को कि देखिए कैसा होता अच्छा है। चलिए, आप मैं राग खमाज की एक बात बताती हूँ। राग खमाज जो है हमारा फंडामेंटल रागों में से एक है। जब हम म्यूजिक सीखते हैं तो राग यमन, राग खमाज, ये हमारे बहुत ही बेसिक रागों में से एक है। राइट। और राग खमाज के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए कि राग खमाज का जो मूड है ना, वो एक फ्लर्ट है, रोमांस है, लव है, लेकिन साथ ही साथ की सेपरेशन और सैडनेस भी है। देखिए अब जैसे सलील दा का ये जो मैंने गाना गाया, हाँ, ओ सजना बरखा बहार आई, प्योर रोमांस, प्योर रोमांस राग खमाज पे बेस्ड है। लेकिन मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई मोरा सैया। ये सैडनेस है, राग खमाजी है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है सैडनेस भी इस राग में। अब राग खमाज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बर्मन्स ने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। आर डी बर्मन और एस डी बर्मन ने आई थिंक इसको जितना खूबसूरती से यूज़ किया है गानों में, किसी ने नहीं किया। आर डी बर्मन का ये गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर बड़ा नट खट्टे है रे, या फिर आज कल पाँव जमी पर। और एक तो उनने मास्टर स्ट्रोक खेला खमाज के साथ। एक गाना है जिसमें अंतरा खमाज में है और मुखड़ा राग तोड़ी में है, और दोनों ऑपोजिट राग है। शाम को भूला शाम का वादा रे, संग दिए के जागे राधा, निंदिया न आए, निंदिया न आए। यहाँ तक मिश्र खमाज चल रहा है। अब देखिए कलर कैसे चेंज होता है, रहना बीती जाए, शाम ना आए, ये राग तोड़ी आ गया। कितना मतलब दिमाग से खेला है उन्होंने। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि राग खमाज शाम का राग है, इवनिंग राग है, और उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया, शाम को भूला शाम का वादा। और राग तोड़ी अर्ली मॉर्निंग राग है, जब सूरज निकलने वाला होता है, लाइक ब्रह्म मुहूर्त, तो रहना बीती जाए, बीत गई है रहना, शाम ना आए। मतलब ये जीनियस लोग थे, जीनियस मतलब जीनियस, मेरे गूज बम्स आते हैं जब मैं इन लोगों की बातें करती हूँ। मेरा भी। आप बोल रहे हो, कि आप सुना रहे हो, मेरा क्या गूज़बम्स आ गया। कैसे कैसे सोचा इन्होंने, और लिखने वाले ने भी, बनाने वाले ने भी। एस डी बर्मन के गाने सुनो, तेरे मेरे मिलन की रहना, या फिर पिया तो से नैना लागे रे। खूबसूरत खमाज, खमाज को जिस तरह से यूज़ किया है ना हमारे बहुत सारे गाने हैं, जैसे एस डी बर्मन, आर डी बर्मन ने और भी बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बहुत गाने, पर खमाज बहुत खूबसूरत राग है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी कि इसमें सैडनेस भी है और हैप्पीनेस भी है, तो इसको ज़्यादातर लाइट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। ठुमरी सुनोगे आप इसमें, टप्पा सुनोगे, या फिल्मी गाने, भजन, गज़ल बहुत होती है। और खमाज राग से हिस्टीरिया जैसी मेंटल इलनेस ठीक की जाती है। हिस्टीरिया इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़ी Absolutely. मेंटल इलनेस है, और राग खमाज से उसको ठीक किया जाता है। तो ये राग खमाज के बारे में, लाइक जैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। और उसके साथ मैं गाने पूरे पूरे गाती हूँ, फिर म्यूजिशियंस के साथ हम प्रॉपर उसको एक डिज़ाइन करते हैं, उसको हम प्रॉपर, दिस इज हाउ आई प्रेजेंट। इसके बाद तो आई विल मेक दिस पार्ट ऑफ माय विश लिस्ट कि कभी भी मौका मिले, आई वुड लव टू गो टू वन ऑफ योर रागीत शोज बिकॉज प्लीज प्लीज दिस डू इज दैट, क्योंकि फिनोमिनल। यस। और 7 रागे, अभी मैंने लास्ट टाइम 7 रागे की थी, राग पहाड़ी,
राग पूर्या धनाश्री, एक से बढ़कर एक राग और उसमें एक से बढ़कर एक गाने, तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, इंफोटेनमेंट हो रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट हो एंड रहा है। हाँ, इंफोटेनमेंट हो रहा है. इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट. एब्सोल्युटली, आई कैन टोटली फील इट एंड आई कैन सी कि क्यों लोगों को नहीं पसंद आएगा। अगर आप एंटरटेन भी हो रहे हो, अपना इतना सुकून भरे गाने सुन रहे हो और आपको कुछ जानने को मिल रहा है, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। आपने बोला ना अभी Yes. मास्टर स्ट्रोक के बारे में, Master stroke. और मास्टर स्ट्रोक। यस. और कभी कभी मैं हाँ, उधर शो कर रही होंगी इसका कोई, तो मैं आपको जरूर इनवाइट भेजूंगी. आप प्लीज प्लीज आप सारे लिसनर्स को इनवाइट भेजिए कि सब आए और सब Absolutely. सुने. Absolutely. Everybody Anyway, must. yes. This is really, really important. और Yes. इसके बाद ज्यादा बातें करेंगे तो इसका जो एहसास है, इसका जो एसेंस है वो कम हो जाएगा। सो अभी इस एपिसोड Yes. के लिए बातें यही तक यस, मैंने थे- जस्ट ट्रेलर है। दिखाया, ये बहुत हाँ। छोटा सा चीज़ है जो मैंने दिखाया. शो अमेजिंग, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा शो में, मतलब क्या क्या नहीं होता शो में. सो यस, थोड़ा सा टीजर था ये. Absolutely. इस टीजर पे, ऑन दिस नोट ऑफ द टीजर, लेट्स रैप अप एपिसोड 2 ऑफ आवर चैट. पर ऑडियंस के लिए बता देते हैं कि यहीं पर खत्म नहीं है। ओके. प्रियानी और मैं वापस आएंगे फाइनल एपिसोड चैप्टर 3 में, और भी बहुत सारी बातें बाकी है और बहुत सारे गाने भी बाकी है। मुझे भी तो बहुत मज़ा आ रहा है. क्या होता है कई बार, सच बात बताऊं तो कई बार आधे टाइम जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है. तो जब मुझे लगता है ना कोई नॉन म्यूजिकल बंदे से बात करे तो मेरा भी ध्यान थोड़ा हटता जाता है. बट आई एम रियली इंजॉइंग टॉकिंग विथ यू, बिकॉज यू अंडरस्टैंड म्यूजिक, यू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट ऑफ आर्टिस्ट. Thank you so much. Kudos to you. Thank you, thank you so much. For the audiences, please stay with us. अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज वापस आइए, थोड़ा पानी वानी पी के आइए, थोड़ा रिफ्रेश होके आइए, हम भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, और गाने चलते रहेंगे, बातें चलती रहेगी. Until then, প্রিয়ানি और मेरी तरफ से नमस्कार. এই পর্বের জন্য এইটুকুই. সেতুর মেগা জন্মদিনের মেগা সেলিব্রেশন এখনো শেষ হয়নি, শেষ পর্ব কিন্তু এখনো বাকি, তাই চোখ রাখতে হবে সেতু দ্য ব্রিজের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলোতে এবং অবশ্যই ওদের ইউটিউব চ্যানেলে. সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, অন্তত থাকার চেষ্টা করুন. নিজের রাইটস জেনে নিন. ক্ষমতায় থাকা নেতা নেত্রীদেরকে জোর গলায় জানিয়ে দিন যে আমরা নিজেদের অধিকার জানি এবং প্রয়োজন পড়লে সেই অধিকারের জন্য লড়াইও করতে পারি. প্রতিবাদ দীর্ঘজীবী হোক. দেখা হচ্ছে আবার খুব তাড়াতাড়ি সেতুর জন্মদিনের স্পেশাল অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে. নমস্কার. Setu, the bridge. Setu.